students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 7 of your class 3 science, that is safety rules. You know, accidents can happen anywhere, anytime. So we should always follow some safety rules, like you should always cross the roads from the zebra crossing. You should never play on the roads. You should drive a car while wearing seat belts. There are many more safety reasons and safety rules. So let's begin with this lesson. In this lesson, we will learn about safety rules, and secondly, we will learn about first aid. You know what is first aid? The first treatment given to an injured person before the arrival of the doctor is known as first aid. So here is the self-survey in which you have to tick the object that we should not touch. आपको उन पे टिक करना है जिस ऑब्जेक्ट को हमें टच नहीं करना चाहिए. लाइक फर्स्ट वन इज द ब्लेड. Should you touch blade? No, you should not touch. Should you touch pencil? Yes, you can. Can you touch the sky? Yes. Should you touch this knife? No, you should not touch this knife. So open anywhere at any time. एक्सीडेंट्स कहाँ पे हो सकते हैं? कहीं भी हो सकते हैं और किसी भी टाइम पे हो सकते हैं. Accidents and injuries happen when we are careless. कब होती है accidents और injuries? जब हम बहुत ज़्यादा careless होते हैं. We can prevent accidents by being careful and alert. हम कैसे prevent कर सकते हैं accidents को? अगर हम careful रहे और alert रहे तो we can prevent some accidents. So here are some safety rules. There are some safety rules and methods that help us in be safe. यहाँ पे कुछ safety rules है जो हमें safe रहने में help करेंगे. They are called safety rules. उनको कहते हैं safety rules. If they are followed carefully, accidents can be avoided. अगर हम उनको अच्छे से follow करेंगे तो हमारे जो accidents होते हैं उनको avoid कर सकते हैं. Like safety on roads. Roads पे कैसे safety रखनी चाहिए हमें? Given below are some safety rules. यहाँ पे जो दे रखे हैं कुछ safety rules है हमारे that we should follow on the road. जो हमें road पे follow करने चाहिए. फर्स्ट वन, वॉक ऑन द फुटपाथ. आपको हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए, यानी कि आप रोड के बिल्कुल एकदम सेंटर में वॉक करो. यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. सेकेंड वन, वॉच द ट्रैफिक लाइट, क्रॉस ओनली व्हेन इट इज ग्रीन फॉर यू. यू शुड ऑलवेज वॉच द ट्रैफिक लाइट. और आपको कब क्रॉस करना चाहिए? जब ट्रैफिक लाइट ओनली ग्रीन है. अगर ग्रीन से पहले आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. और आपको रोड हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए. नाउ फैक्टोपीडिया. मोर देन 1000 पर्सन आर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी डे. एक रोड एक्सीडेंट में मतलब रोड एक्सीडेंट में खाली मोर देन 1000 पीपल्स की मतलब उनके एक्सीडेंट्स होते हैं एक दिन में. सो नाउ इफ देयर आर नो ट्रैफिक लाइट, फर्स्ट लुक एट द राइट टू द राइट. अगर कोई रोड पे ट्रैफिक लाइट नहीं है और आपको रोड क्रॉस करनी है, सो यू शुड फर्स्ट लुक एट द राइट, देन लेफ्ट, देन अगेन टू द राइट while crossing the road, then to the left, then to the right again. If you find the road clear, cross it. अगर आपको रोड क्लियर दिखेगी, कोई व्हीकल नहीं आ रहा, तो you can cross that road. If you are riding cycle, अगर आप साइकिल राइड कर रहे हो, keep to your left. आपको हमेशा अपने लेफ्ट में रहना चाहिए, नहीं कि आपको राइट में जाओगे. आपको हमेशा अपने लेफ्ट में रहना चाहिए. Always give proper signals while taking turn. अगर आप टर्न ले रहे हो तो आपको इंडिकेशंस देना चाहिए. You should always give proper signals कि आपको राइट लेना है तो राइट इंडिकेटर देना चाहिए, लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट इंडिकेटर. So next, do not play on the road or street. आपको रोड्स पे नहीं खेलना चाहिए, ना ही कहाँ पे रोड पे या किसी स्ट्रीट पे नहीं खेलना चाहिए. You should always play on the gardens or in the parks. Do not get in or out moving bus. Do not get in or out of a moving bus. आपको moving bus में से ना तो अंदर जाना चाहिए ना बाहर आना चाहिए. Do not lean out of a moving bus. आपको वो विंडो में से भी बाहर लीन नहीं करना चाहिए. आपको अपने हैंड्स नहीं निकालने चाहिए या फिर अपने किसी भी चीज को या हेड को नहीं निकालना चाहिए बाहर. Now Factopedia. People driving at night wear reflecting clothes to avoid accidents. आपने देखा होगा रात में जो ड्राइव कर रहे होते पीपल, ये बाइक्स पे, स्कूटीज पे, कई बार पैदल भी होते हैं, उनके पे बहुत रिफ्लेक्टेड, उनके क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग क्लोथ्स होते हैं जो एकदम लाइट पड़ते हैं, एकदम रिफ्लेक्ट करते हैं. सो यू शुड ऑलवेज वियर दैट क्लोथ्स व्हाइल एट नाइट. Here are some safety on the playground.
एक प्लेग्राउंड में आप सेफ्टी को कैसे फॉलो कर सकते हो. गिवन बिलो आर सम सेफ्टी रूल्स. यहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स है दैट वी शुड फॉलो ऑन द प्लेग्राउंड, जो हमें प्लेग्राउंड में फॉलो करनी चाहिए. फर्स्ट वन, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. यू शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. आपको हमेशा गेम्स के रूल को फॉलो करना चाहिए. सेकेंड, ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम. आपको हमेशा फेयर गेम खेलना चाहिए, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थर्ड वन, नेवर प्ले नियर वार्डेड वायर्स और हेजेस. जहाँ पे वार्डेड वायर्स होते हैं या हेजेस होते हैं, जहाँ फेंसेस लगी होती है, आपको वहां पे नहीं खेलना चाहिए. यू कैन गेट इंजर्ड ओवर देयर. फोर्थ वन, डू नॉट फाइट व्हाइल प्लेइंग. खेलते टाइम आपको लड़ाइयाँ अपने फ्रेंड्स से बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी चाहिए. यू शुड अवॉइड दैट. And the last one, take fair turns while playing, especially on the swings and seesaws. आपको हमेशा फेयर टर्न्स लेनी चाहिए, कोई भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स के साथ while playing or in the swings or in the seesaws. How can you be safe at the school? Given below are some safety rules that we should follow at school. First one, do not hit or throw things at one another. आपको एक दूसरे को ना तो चीजें मारनी चाहिए, ना एक दूसरे के ऊपर फेंकनी चाहिए. सेकेंड वन, डू नॉट जंप ऑन द डेस्क. आपको डेस्क पे भी जंप नहीं करना चाहिए. एंड बैंग अगेंस्ट डोर, और डोर के अगेंस्ट भी बैंग नहीं करना चाहिए. एंड विंडो पैन्स से, जो विंडो पेन्स जो होता है वहां से भी नहीं निकलना चाहिए. यू मे ब्रेक द विंडो पेन्स एंड हर्ट योरसेल्फ. आप उसे ब्रेक कर सकते हो या आपको उससे चोट भी लग सकती है. सेकेंड वन. थर्ड वन, इफ योर क्लासरूम इज अपस्टेयर्स. अगर आपकी क्लासरूम अपस्टेयर्स है, स्टेयर्स के ऊपर है, द रनिंग डाउन द स्टेयर्स, पुशिंग अदर डाउन और स्लाइडिंग डाउन द बेनिस्टर्स कैन बी डेंजरस. जो आप एक दूसरे को पुश करते हो स्टेयर्स पे या तेज तेज भाग के आ रहे हो, तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू ऑल. नाउ फैक्टोपीडिया. रेड क्रॉस अ सोसाइटी फॉर रिलीफ वाज फाउंडेड बाय I.H. Junand. जो रेड क्रॉस था एक सोसाइटी में, किसने फाउंड किया था? सोसाइटी फॉर रिलीफ वॉज फाउंडेड बाय I.H. Junand. ये I.H. Junand ने फाउंड किया था. नाउ सेफ्टी एट होम्स. सेफ्टी कैसे हो सकते हैं होम्स में? यू शुड नेवर टच द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. यू शुड नेवर टच द शार्प ऑब्जेक्ट्स. यू शुड नेवर टच द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स और वेट क्लोथ्स. Now given below are some safety rules that we should follow at home. यहाँ पे कुछ safety rules है जो हमें अपने घर पे फॉलो करनी चाहिए. First one, be careful while using sharp instruments like scissors, knives, plates, etc. आपको केयरफुल रहना चाहिए कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते टाइम, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि scissors, knives, plates, etc. Otherwise you are likely to cut your finger. नहीं तो आपकी फिंगर कट हो जाएगी. सेकेंड वन, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स. आपको इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना चाहिए. स्विचेस एंड प्लग्स विद वेट हैंड्स. किससे? वेट हैंड से कभी भी टच नहीं करने चाहिए. इफ यू आर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक केटल और एन इमर्जन हीटर, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक केटल या इमर्जन हीटर यूज कर रहे हो, सो डू नॉट टच द वाटर व्हाइल स्विच ऑन. आपको उस वाटर को टच नहीं करना चाहिए जब आप किसी स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे हो. तो Now third one, do not peep into the utensils on the stove. आपको जो utensils आपके स्टोव पे रखे होते हैं, गैस स्टोव पे रखे होते हैं, उनमें पीप नहीं करना चाहिए कि आप उसमें देख रहे हो, because they are hot. उनमें जो वेपराइजेशन होगी वो बहुत ज्यादा हॉट होती है. You can get burns. They may fall you and you may burn yourself. वो आपको गिरा भी सकते हैं. They may fall on you. आपके ऊपर भी गिर सकते हैं और आपको उनसे बर्न्स भी हो सकते हैं. Do not play with fire. आपको फायर से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए. Otherwise, you may be burnt. नहीं तो आप burned हो जाओगे, मतलब आपको जल सकते हो. Do not touch electric heaters. आपको इलेक्ट्रिक हीटर्स को भी टच नहीं करना चाहिए. And hot plates in the kitchen. कहाँ पे? ये जो किचन में आपकी hot plates होती है उनको भी आपको टच नहीं करना चाहिए. And the last one, never fly kites upon the open terrace और रूफ ऑफ अ हाउस. आपको काइट्स फ्लाई नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, या तो ओपन टेरेस होता है जहाँ पे, वहां पे बिल्कुल नहीं करने चाहिए, या रूफ ऑफ द हाउस पे. यू मे फॉल डाउन. आप वहां से गिर सकते हो. फैक्टोपीडिया. वी डायल 112 112 टू कॉल द पुलिस एंड 101 टू कॉल फॉर फायर ब्रिगेड. हम क्या डायल करते हैं? 112 डायल करते हैं हम किसको?
कॉल करने के लिए, पुलिस को कॉल करने के लिए, और 101 to call fire brigade. Now activity zone, write some safety rules on 2 chart paper. You have to write some safety rules. आपको 2 chart papers लेने हैं, उन पे safety rules लिखने हैं and pin them up in the class and your home. एक आप pin करिए अपनी क्लास में और एक अपने home में. So here is one more point. Safety rules at home. Never take any medicine yourself. आपको अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. You may take the wrong medicine or wrong dose. आप या तो wrong medicine ले सकते हो या over eating भी कर सकते हो या उसकी गलत डोज भी ले सकते हो. Ask your elders or doctors to help you. या तो आप elder की help लीजिए या carefully on wet tiles in your bathroom. आपको हमेशा wet tiles जो आपके बाथरूम में होती है उन पे आपको carefully walk करना चाहिए. You may slip and hurt yourself. अगर आप बहुत ज़्यादा fast walk करोगे आप slip भी हो सकते हो और आपके fracture भी हो सकता है, आपको hurt हो सकता है बहुत ज़्यादा. Never lean out of the window to see what is going on below. आपको window से बाहर नहीं देखना चाहिए कि नीचे क्या हो रहा है. You may fall and hurt yourself. आप वहाँ से गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है. Now think and answer. Write 2 safety rules that you should follow at your school. You can write by your own that you should never run on the upstairs. You should never push anyone on the stairs. Write 2 safety rules that you should follow at your home. Do not run in the bathroom because the tiles of the bathroom are slippery, and do not touch the electric appliances with wet hands. So first aid. What do you mean by first aid? First aid क्या होता है? After an accident, the first help given to a person. एक accident के बाद जो एक first help दी जाती है एक person को, that is called a first aid. Here are some first aid given when someone gets hurt. यहाँ पे कुछ first aid है जो हम देते हैं जब किसी को चोट लग जाती है. First one is do not crowd around the injured person. अगर किसी की चोट लगी है तो आपको वहाँ पे एकदम crowd नहीं बनानी चाहिए, भीड़ नहीं लगानी चाहिए. Take him to a hospital if necessary. उसको आप hospital ले जाइएगा बहुत ज़्यादा necessary है, मतलब उसको emergency है कुछ. Second, keep calm. एकदम शांति रखिए, पैनिक मत करना. Attend to the injured person immediately. Attend कीजिए injured person को तुरंत. Now cuts. What do you mean by cuts? Any wound or cut is likely to be infected by germs. कोई भी कट है, कोई भी wound है, उसको बहुत easily germs attract कर सकते हैं. So it is important to disinfect the cut. ये बहुत ज़्यादा important है किसी कट को disinfect करना thoroughly and keep it covered till it heals. और आपको जब तक cover करके रखना चाहिए जब तक वो heal होए. Now Factopedia. First point. First aid box is a box containing equipments needed to give immediate medical help in an emergency. First aid box में क्या होता है? वो सारे equipments होते हैं जो needed होते हैं immediate help के लिए, जो एक मेडिकल हेल्प होती है उसके अंदर. इट इज फॉर इन एन इमरजेंसी. फर्स्ट एड बॉक्स रेडी विद द फॉलोइंग थिंग्स. फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट इज कॉटन रोल होना चाहिए. सेकंड, गॉज पीसेस होने चाहिए बैंडेज के. थर्ड, फोर्सेप्स होनी चाहिए. एडहेसिव टेप्स होनी चाहिए. बर्नऑल, अगर किसी को बर्न हुआ है तो बर्नऑल होना चाहिए. एंटीसेप्टिक लोशंस होने चाहिए. टॉयलेट सोप, अ बॉटल ऑफ टिंचर आयोडीन, रोल बैंडेज ऑफ डिफरेंट साइजेस होनी चाहिए. सो नाउ नेक्स्ट पेज. इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है और कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं? इफ समवन टचेस अ लाइव वायर बाय मिस्टेक. अगर कोई टच कर देता है लाइव वायर को मिस्टेक से तो हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट टच हिम हर विद बट स्विच ऑफ एट द मेन स्विच. तो आपको उसको टच नहीं करना चाहिए और स्विच ऑफ कहाँ से करना चाहिए? एकदम मेन स्विच से स्विच ऑफ कर देना चाहिए. देन कॉल द डॉक्टर इन द मीनवाइल. और इसी बीच में एकदम से डॉक्टर को बुला लीजिए. कीप हिम हर वार्म एंड स्टिल. उसको वार्म रखिए, जो भी है उसको वार्म रखिए और एकदम बिल्कुल शांत रखिए. बर्न, अगर बर्न होता है किसी को तो क्या करना चाहिए? योर स्किन इज वेरी डेलिकेट. आपकी स्किन बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है and sensitive. It can suffer burns from boiling water or fire. उसमें बर्न किस चीज से भी हो सकते हैं? बॉइलिंग वाटर से भी और फायर से भी बर्न्स हो सकते हैं. So if your clothes catch fire, अगर आपके clothes fire catch कर लेते हैं, roll on the ground or wrap yourself in a blanket to put out the flames.
अपने आप को ग्राउंड पे रोल कर लीजिए और एक ब्लैंकेट में बिल्कुल बंद हो जाइए जिससे ऑक्सीजन वहां पास ना हो सके. इफ यू बर्न योर फिंगर कीप इट इन कोल्ड वाटर एटलीस्ट 10 मिनट्स. अगर आप अपने फिंगर को बर्न कर लेते हैं तो उस फिंगर को एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए कहाँ रखिए, वाटर के अंदर रखिए. नाउ ब्लीडिंग. ब्लीडिंग कैसे, ब्लीडिंग हो रही है किसी को तो आपको कैसे स्टॉप कर सकते हो, फर्स्ट एड क्या दे सकते हो. इफ अ कट और वाउंड ब्लीड्स हेविली, अगर कोई कट या फिर कोई वाउंड हेविली ब्लीड करता है, ट्राई टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड बाय प्लेसिंग अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ. तो उस फ्लो ऑफ ब्लड को आप कैसे रोक सकते हो, उस पर एक क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ रख के ऑन इट, देन टाई समथिंग टाइटली जस्ट अबव द वाउंड टू ब्लॉक द ब्लड वेसल्स. तो वहां पे कुछ एकदम टाइटली टाई कर दो जिससे वो ब्लड वेसल को वहीं ब्लॉक कर दे. देन रश टू अ डॉक्टर और हॉस्पिटल इमीडिएटली. तो एकदम डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल में इमीडिएटली जाइए. नाउ नेक्स्ट पार्ट, लर्न टू बैंडेज योरसेल्फ. आपको बैंडेज करना सीखना चाहिए अपने आप को कि आप अपने आप को कैसे बैंडेज कर सकते हो. कीप अ बैंडेज फर्स्ट एड किट रेडी अवेलेबल. आपको हमेशा बैंडेज को, फर्स्ट एड किट को हमेशा अपने पास रेडी रखना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डॉक्टर केयरफुली. जो भी आपको डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन देने आपको हमेशा केयरफुली फॉलो करनी चाहिए उन्हें. नाउ क्विक ब्रश अप. फर्स्ट पॉइंट, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम. एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकते हैं. सेकेंड, वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स. हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए, वेदर इन द स्कूल, एट होम, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड. या तो हम स्कूल में है या होम में, प्लेग्राउंड में या फिर अपने घर पे है. थर्ड वन, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स. हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए. फोर्थ, we should cross the road at the zebra crossing. We should always cross our road at the zebra crossing only. And the fifth one, we should keep ourselves away from the danger. हमें हमेशा अपने आप को danger से दूर रखना चाहिए. And the sixth one, after an accident, the first help given to a person is called the first aid. You know what is the first aid? The first help given to an injured person before the arrival of the doctor is known as the first aid. And the last one is, do not crowd around the injured person. You should never crowd around the injured person because oxygen लेने में problem हो सकती है. They will face problems in breathing. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.